So good morning all of you. Today we will continue the worksheet which we were discussing in the last class. What I told that I had taken questions from sample paper. Question number 12. Question number 13, I think so we have to do. Merits, demerits. Okay. Question number 9. So we have to start from question number 10, isn't that? Yes. Yes, ma'am. Okay. So when we discuss about the question number 10, what do you observe when sodium hydroxide solution is added to the 3 test tubes containing red litmus, distilled water, and phenolphthalein? Okay. So I'm waiting for the reply to the chat because this is a subjective question. You can, and short one, you can answer to the chat quickly. Okay. What you will observe? Very easy question. NaOH को रेड लिटमस में डालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टिल वाटर में डालोगे तो क्या मिलेगा, फिनोल्फथालीन में डालोगे तो क्या मिलेगा? Blue and distilled water. Yes, Viram, correct है बेटा. What about others? In distilled, yeah, colorless, no pink. It is a base. Okay, so let me explain. ये तो कॉमन है, सबको पता होगा कि रेड लिटमस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन डिस्टिल वाटर में डालोगे तो नो चेंज आएगा बिकॉज डिस्टिल वाटर इज नॉट कंटेनिंग एनी आयंस. तो बेस को वो तोड़ नहीं पाएगा, OH माइनस आयन नहीं रिलीज होगा. ओके, सो देयर विल बी no change in the distilled water and in phenolphthalein it will give pink color. Okay, clear? Red litmus से blue हो जाएगा, distilled water में no change and in phenolphthalein it will give pink color. Okay, next, what is observed when ferrous sulfate is heated? So I want the equation and type of the reaction. Which type of decomposition? Equation for ferrous sulfate decomposition. लिखो ना. हाँ, फॉर्मूला सही है. आगे. For decomposition reaction for ferrous sulfate. Is it balance? Yes, Nitika, answer is correct, but it is not balanced. Skeletal equation sahi hai, but the answer that is not balanced one. And what is the type of the reaction? Unbalanced. Correct formula. Yes, Maitri, it is correct. क्या सही है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, आपको मैंने उस दिन पूरा बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में आपको 2-3 डिस्प्लेसमेंट और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कंटिन्यूसली आता है. एक लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल पढ़ लेना, एक ये फेरस सल्फेट वाला. ओके, 2-3 एग्जांपल बता रही हूँ, वो याद रखना. लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन और ये फेरस सल्फेट वाला डीकम्पोजिशन. Then you are having silver chloride. सिल्वर का एक आता है, सिल्वर के सॉल्ट का डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. स्पेशली आता है सिल्वर क्लोराइड आएगा. ओके, तो सिल्वर के सॉल्ट्स का डीकम्पोजिशन, मैं ऐसा नहीं बोल रही सिल्वर क्लोराइड, हो सकता है सिल्वर ब्रोमाइड भी दे दे,
तो मैं ये नहीं बोल सकती, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स। ओके, तो ये देखना, ये कॉमनली आस्क्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है विथ देयर चेंज। मतलब इसमें देखो, इसमें ये इसमें पूछा है कि नो, इसमें नहीं पूछा है कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, लेकिन जब भी कभी कभार 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनाना है तो ये पूछ लेता है कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा। तो इसमें आप ये याद रखिएगा। और लेड नाइट्रेट और KI का जो डिस्प्ले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट एंड KI पोटेशियम आयोडाइड, उसको अच्छी से याद रखना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। ओके, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो ये जो 4 इक्वेशन में बता रही हूँ, आप इसको अगर देखोगे तो कंटिन्यूअसली अगर आप पेपर में देखोगे बहुत बार इसके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन आए। ओके, so we will observe what we will observe brown color, ग्रीन कलर का सॉल्ट है फेरस सल्फेट। जब इसको गर्म करने से ये ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बना लिया है, there is a gas released with the smell of sulfur. Okay, there is a gas which is released with the smell of sulfur. Okay, so these are the 2 observation which you will get. Okay, yes Millie, wait, let me see. Okay Millie, yes, this is Divyansh. But it is lead nitrate na. Divyansh, you are showing the reaction of lead nitrate. Yes, Darshan, it is correct. Viram, it is not balanced. Billy is where? PbNO. Yes, दिव्यान, yes, ऊपर आपने लिखा फेरस सल्फेट, मैंने देख लिया, उसको बैलेंस कर लेना, बस वो बैलेंस नहीं है। दिव्यान, नो मैम, बैलेंस्ड है, कहाँ 2 है ना, फेरस 2 सल्फेट, लिखा है। अरे कहाँ लिखा है 2? अच्छा, लिखा है क्या दूर में? ओके ओके, गॉट इट, से देख लिया। ओके मिली, लेट मी चेक योर्स। बेटा, इट इज नॉट विजिबल, इट्स वेरी स्मॉल। क्या करना है इसको? क्या कैमरा ऑन कर दो, उसका करेंगे तब ना। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग नहीं की है ना। ओके, करेक्ट है बेटा। तो मैंने अभी आपको जितने एग्जाम्पल बताए हैं ना, आप इसको अच्छी से याद रखना। एंड थैंक यू। सो जितने एग्जाम्पल बताए, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड डबल डिस्प्लेसमेंट में, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये 4। ओके, तो इसको तो आप अच्छी से कर लो, तो फिर इसके प्रोडक्ट्स भी अगर याद कर लोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इट इज, what will happen when dilute hydrochloric acid is added to solid sodium carbonate? ओके, तो इसमें भी इक्वेशन है, तो इसको लिख के दिखा दीजिए आप जल्दी से। बन सकता है, लेकिन अपन को दिखाना पड़ेगा, कार्बोनिक एसिड नहीं दिखाना अपन को फाइनल प्रोडक्ट। CO2 गैस एस्केप आउट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं है। CO2 O बचेगा, H2O बन जाएगा, H2O + अगर ये सील्ड वेसल में कराते तो तेरा ये रिएक्शन ठीक है। मैम कभी भी अपना रिएक्टेंट में प्रेसिपिटेट हो सकता है। हाँ, होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मैंने लिखा है सॉलिड, ये सोडियम प्रेसिपिटेट तुमको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। रिएक्टेंट में अगर अपन प्रेसिपिटेट से रिएक्शन नहीं करवा सकते, प्रेसिपिटेट को मैम, इज इट कर जैसे वो क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला कर रहे हो, उसमें आपका जो कैल्शियम मैम, कार्बोनेट के फॉर्म में बन रहा, उसको तुमने एक्सेस CO2 डाल के तो रिएक्शन करवा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ये रिएक्टेंट है। प्रेसिपिटेट हमेशा हमारा प्रोडक्ट साइड में है। प्रेसिपिटेट मतलब रिएक्शन होने के बाद कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बचता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, यस, आई एम गेटिंग द रिप्लाई। यस, करेक्ट। नो नो नो, फाइनल प्रोडक्ट में गलती कर दिया अक्षत। मैम, इज इट करेक्ट? Where is Viram? Are you showing through the video? Yes, ma'am. Okay. Akshat, it is not. मैम, इज इट करेक्ट? Wait, one second. ये दर्शन का करेक्ट है। और भाई वीरम कहाँ चला गया? 1 second, 1 by 1, let me see. HCl plus.
Na2CO3 कहाँ लिखा है बेटा? Na2CO3 फॉर्मूला गलत है ना सोडियम कार्बोनेट का, वीरम एंड दिव्यांश इट इज C. Yes, it is correct. CO2. Okay, correct. वीरम आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला गलत है बेटा, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 आएगा. ओके Yes. Yes. यस ओके जनरली करेक्ट है. ओके सो जब आप सोडियम कार्बोनेट को आप HCl में डालोगे, सिंस इट इज अ रिएक्शन बिटवीन द metal carbonates and acid. And acid, so you will give salt, CO2 and water. Nitika, it is correct beta. Akshat, now it is correct. Okay, clear hai? So it is, it will lead HCl. When you react with HCl with the sodium carbonate, it will lead to the formation of sodium chloride. Okay, so this is the reaction. Acid reacts with the metal carbonate to give salt, CO2 and water. Okay. It will give, so यहाँ पे 2HCl होगा, बस देख लेना इसको. Okay, so it is salt, CO2 and water. Okay, next. Okay. Question number 13. Potassium chloride is mixed with silver nitrate. Now there came the precipitation reaction. Okay, a solution of potassium chloride is mixed with silver nitrate and insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction and also mention its type. Again, I want the answers through the chat or the video as you want to show. Silver का salt फैकी क्यों लगा रहा है? Ma'am, is it visible? Wait. Yes, Viram, show. Babari. अभी देखती हूँ तो सब दिखाएंगे मेरे को. Yes, it is correct. It is also called as precipitation reaction. Okay, correct. Silver का symbol याद नहीं है क्या? Okay, what about others? What about others? Show me the answer. This reaction is also called as a precipitation reaction because the double displacement reaction in which one of the product is insoluble and settle down as at the bottom, it is also called as precipitation reaction. Okay, Nitika, it is correct. Correct, Nitika. It is a double displacement reaction or it is a precipitation reaction. Okay. Any more? What about others? Yes, Maitri, it is correct. Good. Ma'am, I am also showing. Yes, it is correct, Darshan. Good. Okay, what about others? Darshan, Veeram have already shown. And what about others? Yes, Akshat, good. Correct hai. Okay, so this double displacement reaction में आपको ये तो clear हो गया. ऐसे questions अगर आएंगे तो आपको तो इसमें confusion तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत easy type का है. Okay, clear. Next, इसी का हम देखते हैं next part. फेरस सल्फेट. ये फेरस सल्फेट हीटिंग वाला मैंने अभी आपको करा दिया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड. ओके, सो दिस क्वेश्चन आई हैव जस्ट डन, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. एक्सप्लेन हाउ द टेंडेंसी. इट्स वेरी इजी. आंसर प्लीज डोंट शाउट एंड गिव मी द आंसर. भाई एक ही बताइए, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी है, थ्रू द चैट.
Okay. Down the group, tendency to the gain electron will increase or decrease. Just tell me increase or decrease through the chat. Okay. Decrease. Okay, Millie. Answer. With reason. तू कैसे बोला फिर डिक्रीज? Tendency to gain the electron. Yes, Akshat, I can see your answers. Veeram also correct. Divyansh, Akshat, good. Millie, correct. Okay, so मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या कि what will happen to the tendency to gain electron as we move down the group. जब आप periodic table में down the group जाते हो तो साइज बढ़ता है ना? साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है ना? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन मुश्किल हो जाएगा. That means tendency to gain electron will also decrease. Okay, next. What is the 2 in ml chemically? Okay, now just answer me to the chat. What is the name of that chemical composition of CaCO3. 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 Are you sure? 2 nml I'm talking. Nitika, it is correct. It's not calcium carbonate. Ma'am, calcium oxide. It is lime. चूना है वो. चूना लगा था. Yes, Maitri, your answer is good, beta, good, very good. No, Akshat. No, Veeram, no. It is answer is calcium phosphate. The tooth enamel is made up of calcium phosphate, and as due to the acidic condition created in the mouth after eating, the tooth enamel starts corroding. And to prevent that, doctors prefer toothpaste because it is basic in nature. Okay. CaCl2 not Ca3PO4 twice. Calcium phosphate. PO ब्रैकेट के अंदर 4 twice. Okay, Ca3PO4 twice, that is calcium phosphate. This is the chemical composition of tooth enamel. Okay, remember this. मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन ऑफ पीएच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आ गया 3 मार्क्स का और बहुत स्कोरिंग है. इस पे मार्क्स लूज करोगे तो फिर कहाँ गेन करोगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर 16. स्टेट द कलर ऑफ फिनोप्टेरिन सोप सॉल्यूशन. बेस्ट इसको लिखते जाओ. फाइनल बस एक छोटा छोटा आंसर लिख के भेजते जाओ. यस, करेक्ट 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 करेक्ट, गुड. यस, तीनों को एक साथ लिख के भेजते जाइए, मैं इसको देख लूंगी. Pink. Yes, all the to the chat only, beta. To the chat. White. Divyansh, your answer is correct. Millie, correct. जिसका फर्स्ट हो गया है वो सेकंड और थर्ड चालू कर दीजिए. Yes, what about the second and the third part? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. नितिका, वेरी गुड, करेक्ट, एकदम सही. Only one, first one you will write. No need to write the second and the third part. Divyansh, correct. Ma'am, is it visible? Ma'am, I am showing through video. Okay, wait. Veeram. Wait, हाँ. अरे Just one थोड़ी second. बता. खाली Cl2 गैस आएगा ना काम.
जब ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। सेकेंड वाले का गलत है बेटा। सेकेंड वाले में आपको इतना पूछा है, आपको इक्वेशन नहीं लिखना था बेटा, आपको ये पूछा था कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट बनाने का काम आता है, तो NaOH का पहली बात तो आपका अगर इक्वेशन लिखे हो तो भी NaOH का फॉर्मूला गलत है। दूसरी बात जो फाइनल आंसर है वो है Cl2। आपसे बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के दौरान एक ऐसा प्रोडक्ट निकलता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट बनाने के काम आता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट बनाने के काम आता है। ओके क्लियर? तो इसमें फाइनल आंसर आपका क्लोरीन है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं आपका इक्वेशन चेक करूं तो इक्वेशन में गलती ये है कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला गलत लिखा है, अदरवाइज द रेस्ट टू इज करेक्ट। ओके सो लास्ट पार्ट में ये पूछा गया था कि आपको ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो पूरे मतलब हाइड्रोजन आयन के हर कंसंट्रेशन को बताता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यू कैन राइट ऑन द पीएच स्केल इज वर्ड बट इट इज नॉट एन इंडिकेटर। ओके इंडिकेटर का वर्ड यूज किया है ना, तो इंडिकेटर में इंडिकेटर अगर यूज करेंगे तो दैट विल बी व्हाट यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके नेक्स्ट ब्यूटेन इथाइन। Yes, by the time chemical name of C4H10 and C2H2 and draw their structure. I want the structure through the your video. You will show me through the video. C4H10 and C2H2. Yes. Okay. Hmm? Ma'am, is it correct? Yes. Ma'am, Divyansh is correct? showing. Wait. Divyansh is showing. Wait, Divyansh, let me see 1 second. It is butane अब करेक्ट है, नीचे वाले पे कितना बॉन्ड लगा है? यस करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, गुड दिव्यांश, इट इज करेक्ट, गुड गुड। नाउ वीरम शो मी। यस वीरम करेक्ट है बेटा, गुड, वेल डन। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? ट्रिपल बॉन्ड तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? हाँ ठीक है, ब्यूटेन ठीक है। यस यस करेक्ट है एमिली, गुड, करेक्ट है बेटा। What about the others? कौन है भाई? 18 participants are there and only 3-4 are showing. What about others? Molly, Purab, Sambhav, Samkit. What you people are doing? Deshna is sitting there without with the audio. No, is not connected. Isn't that Deshna? I am telling you, those who are sitting like this now without the connection of the audio, I will remove you from the class. Either you connect to the audio, give me the answers, or don't sit in my class. That is much better. Deshna, I am giving you one warning. To after 2-3 minutes again, I will check. If you are not connected to the audio, I will remove you. Yesterday, I removed 3 people from the class, and now it is yours chance. मेरी आवाज भी नहीं जाएगी क्या? I will remove. If they complain, I will talk. मैम अपना कंटिन्यू करते हैं ना। Yes, wait. I will not wait for sitting like this. कि आप क्लास में बैठे रहो और बिना रिप्लाई किए आप। ओके सो ये दिस पेपर इज डन। ओके ये पेपर हो गया। अब मैं दूसरा पेपर निकाल रही हूँ, अनदर पेपर विच इज बेस्ड ऑन द 2 चैप्टर्स। ओके दैट इज द चैप्टर नंबर 3, no chapter number 5 and 1. Okay, wait, let me take out that. Yes, मैम सोडियम जिंकेट वाला एक रिएक्शन था ना, वो कराओ ना एक बार। किसके साथ? सोडियम जिंकेट या जिंक का? हाँ हाँ उससे क्या हो गया? C2Z था ना, हाँ NO2 ये कुछ जिंक तो का था वो रिएक्शन। एम्फोटेरिक मेटल वाला रिएक्शन। हाँ क्या हो गया उसमें? एक बार वो बताओ ना मैम क्या था। जिंक
जो है वो एक जिंक का पूछ रहे हो कि जिंक ऑक्साइड का पूछ रहे हो? वही जिसमें Na2ZnO2 बनता था ना हाँ, एक तो रिएक्शन में। एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी ये रिएक्शन होगा। एल्यूमिनियम मेटल में भी आपका मेटल का भी रिएक्शन होता है एसिड के साथ, तो उसमें भी सोडियम जिंकेट बनेगा। और अगर आप जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हो तो भी सोडियम जिंकेट बनेगा। पहले जिंक ऑक्साइड के साथ बता देती जो कि मेन है। ओके, तो सोडियम जब हम रिएक्शन कराते हैं किसका, जिंक ऑक्साइड का NaOH के साथ, जो कि एक एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड है, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ओके, Na2ZnO2 यस, इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ओके, प्लस सिंस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे H2O निकलेगा। H2O. H2O न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है बेटा। ओके, सो यहाँ पे सोडियम जिंकेट एंड वाटर बनेगा। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, सो हियर दिस इज द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद NaOH। अगर यही चीज आपको मेटल का रिएक्शन करना है तो आप क्या करोगे, जिंक का रिएक्शन कर दोगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट वही रहेगा, बस H2O की जगह आप क्या कर दो, H2 कर दो, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ओके, क्लियर? तो अगर आपको यही रिएक्शन आपको एल्यूमिनियम Zn का रिएक्शन अगर आप कर रहे हो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। ओके, ओके, तो ये रिएक्शन है आपका सोडियम जिंक के साथ। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड में जरूरी नहीं है आप, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड में जरूरी नहीं है आप जिंक ऑक्साइड का ही याद रखो, आप चाहो तो सोडियम का सॉरी एल्यूमिनियम का भी याद रख सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी सेम ही आएगा। ओके, तो लेट्स इसमें कोई प्रॉब्लम है और कि अपना क्वेश्चन चालू करना, सॉल्व करना चालू करें? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके अनदर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हैं, दैट इज 5th एंड 1st चैप्टर। तो अभी जो क्वेश्चंस होगा वो सिर्फ 5th एंड 1st चैप्टर के ऊपर बेस्ड होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, प्लीज आंसर मी टू द चैट। ओके, मेरे को किसी का आंसर ऐसा सुनना नहीं है। आई वांट द आंसर्स टू द चैट, प्लीज रिप्लाई टू द चैट क्विकली। कैल्शियम इज द एलिमेंट, ए मेटल है, नॉन मेटल है, इसकी साइज पोटेशियम से बड़ी होगी कि छोटी होगी, एंड व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड? Yes, I got the answer to the chat already. Wow. No? Where is the answer? What? Bada? Okay. ये फिर वेट ना, ये बड़ा किसको बोल रहा है? वीरम बड़ा किससे बोल रहा है भाई? Nitika, your answer is correct. It is a metal. There's a calcium is a metal and अगर पोटेशियम इसको कंपेयर करना है किसके साथ, पोटेशियम के साथ। यस वीरम, कैल्शियम के कंपैरिजन में ये बड़ा होगा। नेक्स्ट, देन calcium it's in comparison to potassium it will be bigger. Okay, it going no sorry छोटा होगा, calcium will be smaller because you are moving along the period, isn't that? और along the period size घटता है। Okay, so it will be smaller, calcium will be smaller than potassium and its formula of its chloride will be calcium chloride. ओके, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ओके, फॉर्मूला सबका सही है, बस यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, कहाँ पे, साइज में, जहाँ पे बिगर देन पोटेशियम हो गया। बिगर देन पोटेशियम नहीं होगा, स्मॉलर देन पोटेशियम होगा, क्योंकि हम लोग अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं और अलोंग द पीरियड साइज घटता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 2,
नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। तो आपको थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स याद हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स याद है? देखो आपको आंसर भी क्वेश्चन में ही मिल गया। दिखाओ, मैं दिखा रही हूँ, देखो ये देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, मिल गया, नीचे ही आंसर दिया आप। ओके, तो ये है, ये सिंबल थोड़ा देख लेना, सिंबल इस इमेज में गलत है क्योंकि जी जो है स्मॉल आएगा। ओके, क्लियर? ओके ना, इसका अगर हम देखते हैं, अब इसमें सॉल्व करने के लिए हमको ये क्या बोला है कि आपको जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनके नाम बताओ। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ओके, 20 तक एलिमेंट मैंने आपको बोला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। 20 एलिमेंट इज मस्ट, इसीलिए बोला था मैंने 20 एलिमेंट याद करो, क्योंकि आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18 तो पूछता ही है। उसके अलावा पीरियड में आपको सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, ये तो पूछेगा ही। ये आपके कोर्स में ही आ गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड, तो याद करना ही पड़ेगा बेटा, इसमें आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड का नाम, एलिमेंट्स के नाम मिल गए। अब इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट क्या है, ऑन विच साइड ऑफ द टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स? वेयर यू विल फाइंड मेटल्स, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। Yes. On which side of the table do you find the non-metals? Right. Okay. So this way you will answer. तो फिर से बोल रही हूँ, पीरियड के एलिमेंट्स का याद रखना, 20 तक एलिमेंट सीक्वेंस में रट लो। ओके, क्लियर? और ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट आते हैं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एटॉमिक रेडियाई वाले क्वेश्चन उठाओगे तो यहाँ अल्कलाई आता है कि अल्कलाई आता है सिर्फ? यस यस यस, किसमें? फर्स्ट में अल्कलाई मेटल। फर्स्ट इज हाँ। अल्कली, सेकेंड इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनको अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अर्थ के कोर में पाए जाते होंगे। बिकॉज अर्थ क्रस्ट में उनके जो सॉल्ट होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, इसलिए उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ टेबल इज गिवन टू यू। ओके, अब आपको ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको जस्टिफाई करना है ये टेबल देख के। पहला है, लिथियम एंड सोडियम आर कंसिडर्ड एज एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्यों बोला जाता है इनको? मैम बिकॉज उनकी वैलेंसी 1 है और वो ज्यादा रिएक्टिव है। द मोस्ट एक्टिव मेटल्स का मतलब होता है द मोस्ट, मैम because they react very vigorously. आप चाहे तो शॉर्ट में दे सकते हो, अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कितने में आंसर लेता है। तो अब क्या है, इसमें क्या होगा कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट में मिलता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो सबसे बड़ी साइज है इनकी अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। ओके, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में इनकी साइज बड़ी है। ओके, एंड दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम का कम है सोडियम के कंपैरिजन में, क्योंकि from left to right, And because as we move left to right in group, we find that there is decrease in the size of Viram, your voice is breaking. there is high nuclear charge in magnesium comparative to sodium. Period size decreases. Along the period, atomic size decreases, because of which metallic because of which metallic character will also decrease. मैम एटॉमिक साइज आल्सो डिक्रीज हो रही है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ओके, पीरियड शेल सेम है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। Chlorine is more positive than chlorine. Yes, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, और अगर नॉन मेटल्स की हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों डाउन ऐसा जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज, एक गलती बताया था मैंने आपको प्री बोर्ड में, अभी ABCD वाला एक टेबल बना के क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने आपको BC करके एक एलिमेंट, सपोज यहाँ पे F के जगह था एक एलिमेंट और S के जगह एक एलिमेंट था। ठीक है, तो उसमें मैंने बोला था बी, ये दोनों में बड़ा कौन होगा? तो दोनों में बड़ा कौन होगा? तो जाहिर सी बात है एस तो बड़ा होगा क्योंकि वो नीचे जा रहा है।
लेकिन जब मुझे और मैंने पूछा वाई ऑल्सो, तो लेकिन मुझे आंसर किस बेसिस पे मिला कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। अरे भाई ये एलिमेंट तो एक ही पीरियड के है नहीं, तो आप पीरियड के बेसिस पे कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते। और ये पूरे क्लास में किसी ने ये नहीं लिखा, सब ने लिखा अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, अलोंग द पीरियड साइज। आप देखो तो वो दोनों की जगह किधर है। एफ और एस को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हो गए, है ना, अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हो गए, तो ग्रुप इनका आप शेल्स भी चेंज होगा, शेल्स चेंज होगा तो साइज चेंज होगा, और मेटालिक या नॉन मेटालिक जो भी कैरेक्टर में कंपैरिजन बोला है वो चेंज होगा। तो आप लोग क्यों लिखते हो कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। अगर ऐसे कोई कंपैरेटिव आता है कि दोनों अलग अलग पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, then please relate accordingly. You people are not relating accordingly and just giving the answer what is fixed in your head. गलत हो जाता है उससे आंसर। पूरी क्लास में मुझे एक बंदे ने भी आंसर नहीं दिया इसका करेक्टली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एलिमेंट्स। मैत्री, I can see your answer, good beta. Billy also. Two elements in the x and y, group 1 and group 2, same period है, compare them with the respect to valence electron, valency, metallic character, size of atom, formula of their oxides and chlorides. Yes, ये तो पूरा 5 marks का क्वेश्चन है। जो वैलेंसी है वही एक्स का क्या फॉर्मूला होगा ऑक्साइड का? X2 और क्लोराइड का फॉर्मूला XCl। क्लोराइड भी पूछा है ना, XCl और Y का हो जाएगा Yes, what about the answers? Can I get the answers to the video or you are giving me to the chat? क्या हुआ? हाँ, XY ये तो क्या है? आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है, ठीक है। करेक्ट है, हाँ। X और Y का फॉर्मूला। What about others? Can I get the answers? Yes, Billy correct है। Viram, okay. Gayatri also correct. Billy also correct. थर्ड B एंड D क्या है ये क्या बोल रहा है बेटा? फोर्थ D ये क्या है? क्या है थर्ड B? क्या है ये? Yes. Millie, your answer is correct for the formula. Maitri? Yes. Okay. So the first, if I am talking this,